He is a child, as you are a child. You want to know who is he? Yes? All right. I'll tell you who is about to come between us. All right. So here we have Avi Sharma. All right. Avi Sharma, he is the wonder boy of India and author of Balmukhi Ramayan. He holds world record and India Book of Record. You know, Avi Sharma is a 12 years world record and India Book of Record holder. Known as Wonder Boy of India, coming from the heart of Madhya Pradesh, Indore, he is child prodigy, left behind Albert Einstein and Bill Gates having the IQ 161, which is rare, and only 2% of world population acquires it. Avi Sharma holds many world records. You can see his pictures here. He is an author, motivational speaker, youngest mentor of Vedic maths, youngest news anchor, actor, youngest host of online interview show, founder of Mission Sanskar. Not only this, children, he has also written Balmukhi Ramayan during his lockdown time. You know, he utilized his lockdown time writing Ramayan, and he has written that Ramayan in Hindi. You know why? Because so that all the citizens of India can read it. See, this is the picture of Balmukhi Ramayan which he wrote. Not only this, children, he has many international and national awards. You can see his picture. His name is Avi Sharma. All right, children, I have a short video for all of you. Okay, so here we have a short video and then we are going to welcome Avi Sharma. The voice is not coming. No. Okay, children, so he is Avi Sharma. Voice is not coming. I'll tell you. He is Avi Sharma, and at the age of 10 years, he has determined to become that he will become prime minister when he grows up. And his views on politics are, when you will be doing good, you will be getting better. Okay. So he is Avi Sharma, and I'll just tell you, the voice is not coming. He has done so many inspirational and motivational shows, children. So here I would like to welcome Avi Sharma among us, and a big round of applause for Avi Sharma, children. We have Avi Sharma with us. I want all of you to welcome him with a big round of applause. Over to you, Avi. Over to you, beta. Okay. कौमारमाचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मनुष्यं जन्मा तद्यपि अध्रुवम जतम. तो मित्रों, भागवतम में प्रहलाद महाराज ऐसा कह रहे हैं कि हमें जो भी कार्य यानी कि जो भी वर्क हमें लाइफ में आगे करना है उसकी शुरुआत हमें एट द एज ऑफ 5 से ही कर देनी चाहिए. So first of all, good morning, respected principal ma'am, all the teachers and all my dear friends, little friends and all their parents. So first of all, I would like to thank Bhatia ma'am and the whole team of NDPS for giving me this wonderful platform as today is Children's Day celebration. So thank you so much for giving me this platform for expressing myself in front of all my little friends. So पहले तो
सभी को एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हैं मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, आप लोगों को पता है कि जब मैं आप लोगों की एज का था या उससे भी मैं छोटा था, भाटिया मैम मुझे तब से गाइड करती आ रही है और अभी तक शी इज लाइक गाइडिंग मी एंड आई ऑलवेज नीड हर गाइडेंस एंड आई एम स्टिल लाइक यू नो हर स्मॉल लड्डू। सो इसलिए ही आप लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि बचपन से ही आपको उनकी गाइडेंस मिल रही है। सो आई एम श्योर यू विल टर्न आउट अ ग्रेट पर्सन इन अ फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे इन एडवांस, क्योंकि वो तो 14th को है। सो इसलिए ही आज हम लोग ये चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आप सभी को पता है हम लोग चिल्ड्रंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किसका बर्थडे है डे आफ्टर टुमारो? कैन एनीवन टेल मी? ओके दैट्स वेरी गुड, आप सभी लोग बहुत ही एनर्जेटिक है, आई एम सीइंग। बिल्कुल बिल्कुल, ओके दैट्स वेरी गुड। चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज मींस डे आफ्टर टुमारो उनका बर्थडे है और ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही लव्ड चिल्ड्रन अनकंडीशनली, मींस वो बहुत प्यार करते थे हम बच्चों से। सो आज हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसलिए ही आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। सो पहले तो लाइक मैम ने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बट फिर भी मैंने आप लोगों को तो देख लिया आप कितने एनर्जेटिक हैं। अब मैं भी थोड़ा बता देता हूँ। सो आई एम अभी शर्मा एंड आई एम एन एंकर, एक्टर, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सो जैसा कि मैम ने बताया, आप लोगों ने देखा ना कि मैंने बाल्मीकि रामायण लिखी है, देखा आप लोगों ने? ओके, तो आप लोगों को पता है बाल्मीकि रामायण क्या है? बाल्मीकि रामायण, रामायण तो आप लोगों को आई होप पता होगा। सो रामायण जो भगवान श्री राम की कथा है उसको मैंने एक समरी फॉर्म में लिखा पिछले लॉकडाउन में। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैंने रामायण को क्यों लिखा। सो बेसिकली हम सभी को पता है पिछले साल लॉकडाउन हुआ था मई में, कितना बड़ा लॉकडाउन हुआ था, सब लोग कितने परेशान थे। सो इसलिए ही तब टीवी पर आपने में भी अपने पेरेंट्स के साथ जो रामायण, पुरानी रामायण दिखाई गई थी वो देखी होगी, है ना? सो मैंने भी अपने पेरेंट्स के साथ जब वो रामायण देखी, सो मुझे उससे इतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिला कि भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इतना इंस्पायरिंग है, वो कितने अच्छे इंसान थे। सो इसलिए ही जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे भगवान श्री राम के इस कैरेक्टर को लिखना चाहिए समरी फॉर्म में। सो इसलिए ही मैंने क्या लिखा, बाल्मीकि रामायण। आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि भगवान श्री राम की लाइफ से ऐसे 4 लेसन हम लोग लेंगे जो हमें एक लाइफ में बहुत ही अच्छा इंसान, अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल बनने में हेल्प करेंगे। क्योंकि भगवान की कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहुविधि सब संता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी की कथा और वो दे आर बाउंडलेस, उनकी कथा इन्फिनाइट है। तो इसलिए ही हम लोग आज 4 ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे। सो आप लोग रेडी हैं? आर यू ऑल रेडी? ओके ओके, मेरे पास आप सभी के लिए सरप्राइज स्टोरी भी है। ओके ओके, सो आखिर में मेरे पास आप सभी के लिए एक सरप्राइज स्टोरी भी है, तो उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल ही रेडी रहिएगा। ओके, स्टोरी के नाम से अभी से आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए, सो पहली चीज हम लोग भगवान श्री राम की लाइफ से देखेंगे वो है पेशेंस। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भगवान श्री राम के जो फादर थे, he was a king, a very big king, मतलब उनका किंगडम बहुत बड़ा था और उनकी ना 3 वाइफ्स थी, है ना? सो एक बार ना राम जी के फादर ने सोचा कि मैं राम जी जो उस समय प्रिंस थे, अब मैं इनको किंग बना दूं, यानी कि जितना भी जो किंगडम है अब मैं राम जी को उसका किंग बना दूं। सो अब ये बात बाकी 2 उनकी वाइफ्स को तो अच्छी लगी, पर जो उनकी 1 वाइफ थी वो अच्छी नहीं लगी भगवान श्री राम की एक मम्मा को। सो इसलिए ही उन्होंने क्या कहा दशरथ जी से, मीन्स उनके फादर से, कि आप मेरे बेटे को किंग बनाइए, राम को नहीं, और राम जी को आप 14 इयर्स के लिए फॉरेस्ट में भेज दीजिए। अब ही वाज अ प्रिंस, तो जब उनके पास ये न्यूज आई तब उनके मुख पर जरा सा वो उदास नहीं आया।
आप मानिए कि उनको इतना बड़ा किंगडम मिलने वाला था, बट अब उनको फॉरेस्ट जाना पड़ रहा था। बट देन टू उनके मुख पर एक भी फ्राउन नहीं आया और उन्होंने सहज इस बात को स्वीकार किया। सो ऐसा होता है ना कि अक्सर हमारे मम्मी पापा हमें किसी चीज का प्रॉमिस कर देते हैं और किसी रीजनेबल कारणों से वो नहीं ला पाते हैं हमारे लिए वो चीज। सो हम लोग कितना जिद्दी करते हैं, उसके लिए रोने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना। मैं भी यही चीज करता था जब तक मैंने ये बात भगवान श्री राम की पढ़ी नहीं थी। सो मैंने देखा कि भगवान श्री राम जब इतने पेशेंस फुल हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। सो इसलिए ही हमें इससे ये चीज सीखनी चाहिए कि हर चीज में हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और तभी हम लोग एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो आप लोग आज से पेशेंस रखेंगे ना भगवान राम की तरह, हमें उनकी तरह बनना है ना। Yes. Okay, yes, come on, बिल्कुल, I want some energy. How's it, Josh? Yes. Okay, Yes. very good. That's very Yes. good. तो Yes. अब हम सीखेंगे उनकी लाइफ से दूसरा लेसन, दैट इज रेस्पेक्ट। आप लोगों को बताऊं, भगवान श्री राम की जिन मम्मा ने कहा था ना उनको कि आप फॉरेस्ट में चले जाओ, वह सबसे पहले उन्हीं के चरण छूते थे। मींस वो सबसे पहले उठते थे तो अपनी तीनों माताएं के और उनके फादर जो थे उनके पहले तो वो नमस्ते करते थे और फिर उनके जो गुरुजन थे यानी कि उनके जो टीचर थे उनको वो क्या करते थे, प्रणाम करते थे। तो इसलिए ही हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी उठते ही अपने पेरेंट्स को और अपने जो टीचर्स होते हैं उनको नमस्ते करना चाहिए। वैसे भी आपके सारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, आपको इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो इसलिए ही हमें हमेशा ही ये काम करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मनुस्मृति में ऐसा मनुस्मृति में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी गई है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है कि अगर हम लोग सुबह उठते ही मम्मी पापा और टीचर्स को नमस्ते करेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो हमारी 4 चीज बढ़ जाएंगी। तो 4 चीजें कौन सी बढ़ेंगी, पहले तो आयु, हमारी एज बढ़ जाएगी, वी लिव अ लॉन्ग लाइफ। फिर विद्या यानी कि हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी, और आप लोगों को पता ही है ना कि नॉलेज इज सच अ वेपन दैट कैन चेंज द होल वर्ल्ड। और फिर क्या बढ़ेगा, यश, हमारी कीर्ति बढ़ेगी, वी विल बी फेमस इन द होल वर्ल्ड। हम सभी लोग फेमस होना चाहते हैं ना। यस, सो यश हमारा बढ़ेगा और फिर बल मींस विल बी पावरफुल, हमारी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो आप सभी लोग चाहते हैं ना कि ये जो 4 चीजें ये बढ़े आपके अंदर, आयु, विद्या, यश और बल, चाहते हैं ना। यू वांट टू बी मोर पावरफुल, मोर नॉलेजेबल, मोर फेमस एंड मोर लाइक लॉन्ग लाइफ। सो इसलिए ही हमें क्या करना चाहिए, उठते ही माता पिता के हमें चरण छूने चाहिए, गुरुजनों को भी हमें नमस्कार करना चाहिए। सो अब जो तीसरा लाइफ लेसन हम ले सकते हैं वो है ब्रदरहुड। अब हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि आप सपोज कोई आज आपका बर्थडे है तो आप चॉकलेट ले आए, तो हम लोग क्या करते हैं कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है, मैं इसको चॉकलेट नहीं दूंगा, अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, मैं इसको चॉकलेट दे देता हूँ। सो अक्सर हम लोग ऐसा अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते थे। मैं भी करता था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट जब तक मैंने रामायण से ये बात नहीं पढ़ी थी, भगवान श्री राम हमेशा ही अपने चारों भाइयों के साथ प्यार से रहते थे और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे ना, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, उन सबको वह हमेशा ही प्यार से रखते थे। डिस्क्रिमिनेशन भगवान राम कभी भी नहीं करते थे। आपको बताऊं, विभीषण जी was very kind hearted but he was a demon, but उन्होंने गले लगाया। और जो सुग्रीव जी थे वो वानर राज थे, उनको भी भगवान ने गले लगाया। सो अब हम ये चीज उनसे ले सकते हैं कि हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और सबके साथ हमें कैसे रहना चाहिए, प्यार से। प्यार से हम सभी लोग ऐसे रहेंगे ना, हम सबके साथ। Yes. ओके, Yes. तो बिल्कुल हम सभी लोग ऐसा हमेशा ही करेंगे। क्योंकि मैं आपको महोपनिषद में कहा गया है, तो महोपनिषद में कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु
वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, उनका दिल बहुत छोटा सा होता है। बट जो पूरे वर्ल्ड को अपने फैमिली समझते हैं, उनका क्या होता है, दिल बहुत बड़ा होता है। तो हमें बहुत बड़ा दिल चाहिए ना, तो इसलिए ही पूरी वर्ल्ड को हमें अपनी फैमिली समझना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं करना चाहिए। और आखिरी चीज जो हम उनसे सीख सकते हैं वो क्या है, हमेशा विनम्र रहना। भगवान श्री राम के पास लाइफ में सब कुछ था, फिर भी वो क्या करते थे, सबसे प्यार से रहते थे और सबसे विनम्रता से, यानी कि डाउन टू अर्थ रहते थे सबसे। वरना वो भी प्राउड में आ सकते थे, बट नहीं, भगवान श्री राम हमेशा सबसे क्या करते थे, विनम्रता से बात करते थे। और इसलिए ही चाणक्य नीति में भी ऐसा कहा गया है कि नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुडिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। यानी कि आपने वो फल वाले पेड़ देखे ना, जिन पर एप्पल और मैंगोस लगते हैं, उनकी डालियां कैसी होती है, ऐसी झुकी हुई होती है। और आपने वो वाले वृक्ष भी देखो जिनको ऑटम सीजन आता है तो कैसे सारी पत्तियां उनकी झड़ जाती है ना, सो वो कैसे होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं। सो जिन पेड़ों पर फल होते हैं वो हमेशा झुके हुए रहते हैं, और जो क्वालिटी वाले लोग होते हैं ना, मतलब जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो लोग भी हमेशा सबसे डाउन टू अर्थ रहते हैं। बट जो ऐसे ड्राई पेड़ होते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं, मीन्स जिनके पास कुछ नहीं होता, वो हमेशा प्राउड में रहते हैं, और वो प्राउड बिना किसी रीजन का होता है। सो इसलिए ही हमें तो कैसा बनना है, एकदम अच्छा इंसान बनना है ना, तो हमेशा ही हमें सबसे डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ओके, सो अब ये 4 लेसन आप लोग याद रखेंगे, बताइए मुझे, कम ऑन। Yes, definitely. ओके, सो सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अब स्टोरी टाइम के लिए। सो अब आप सभी लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और आप लोग लाइफ में हमेशा ही इसको याद रखिएगा। ओके, यस, सो लेट मी टेल यू। मैम आप पहले एक बार जो स्लाइड्स शेयर कर दीजिए, यस, ताकि बच्चे हैं तो हम ज्यादा अच्छे से उसको समझ सके। सो ये स्टोरी है एक क्रो की, इसका एक्चुअली टाइटल है सबसे सुंदर कौन, यानी कि हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। सो एक बार ना एक क्रो रहता था, मैम प्लीज स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो एक बार ना एक क्रो रहता था एक फॉरेस्ट पर, और वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहता था। लाइक क्रो जो होते हैं कौवा, वो बहुत अपनी लाइफ में खुश रहता था। बट एक दिन उसके आगे जो पेड़ के आगे जो तालाब था, एक पॉन्ड था, उसमें उसने क्या देखा, वहां पर एक स्वान आया है। अब आप लोग देख सकते हैं स्वान तो कितना वाइट है और कितना ब्यूटीफुल है, और कौवा बेचारा क्या है, इज ब्लैक इन कलर। सो जब क्रो ने स्वान को देखा, सो क्रो ने सोचा ये तो इतना ब्यूटीफुल है, सो जरूर ये ना सबसे ज्यादा हैप्पी होगा वर्ल्ड में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुंदर है। तो वो क्या गया, उड़ते उड़ते वो स्वान के पास गया, और उसने स्वान से पूछा कि आप तो सबसे सुंदर और सबसे खुश होगे ना। तो स्वान ने कहा हाँ, मैं सबसे ज्यादा खुश था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। आप देखो तोते के गले पर कितना सुंदर रेड पत्ता है, और उसकी बीक भी कितनी रेड है। लाइक हम दोनों के पास तो खाली एक ही कलर है, तोते के पास तो 2 कलर है, उसकी आवाज भी इतनी मीठी है। सो इसलिए ही मुझे तो लगता है सबसे सुंदर तोता ही है। अब कौवे को लगा मुझे तोते के पास जाना चाहिए, आई शुड गो एंड फाइंड द पैरेट। तो अब क्या हुआ, जो क्रो था वो फ्लाई करते करते एक पैरेट के पास गया, और फिर जो कौवा था उसने पैरेट से बोला कि आप तो इतने सुंदर हो, आप तो इतने, यस, आपका पूरा ग्रीन बॉडी है, आपकी बीक भी इतनी सुंदर है। मैम प्लीज स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होगी। आप देख सकते हैं कौवा उससे बोल रहा है। तो पैरेट ने भी कहा कि हाँ, मैं सबसे ज्यादा खुश रहता था और मैं खुद को सबसे ज्यादा सुंदर समझता था जब तक मैंने पीकॉक को नहीं देखा था, यानी कि मैंने जब तक मोर को नहीं देखा था। अब आप देखो मोर में कितने सारे कलर्स होते हैं, और वो तो मुझसे अच्छा कितना नाचता भी है।
सो इसलिए ही मोर सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा खुश प्राणी है, मुझे लगता है। ऐसा जो पैरट था उसने क्रो से कहा। अब क्रो ने कहा मुझे तो अब इस जो पीकॉक है उसको ढूंढना ही है, बट उसने तो सारा जंगल देख लिया ही, सर्च दी होल फॉरेस्ट, बट उसको कहीं भी क्या जो पीकॉक था वो नहीं मिला। तो जब वो जंगल से थोड़ा बाहर गया तब उसने क्या देखा कि वहां पर एक जू में, एक चिड़ियाघर में, एक केज में पीकॉक है। वहां पर सब लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं और पीकॉक सबको नाच के दिखा रहा है। तो जब वो सभी लोग चले गए तब कौवे ने आके पीकॉक से कहा कि आप तो सबसे सुंदर हो, आप इतना अच्छा नाचते भी हो, तो आप सबसे ज्यादा खुश हो गए ना। उसने कहा भले ही मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, अच्छा नाच लेता हूँ, बट मैं क्या करूं, आई एम ट्रैप्ड इन दिस केज, मैं हमेशा केज में ट्रैप रहता हूँ। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा खुश तुम्हें ही होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद हो और अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हो। अब कौवे को तब ये बात रियलाइज हुई, क्योंकि उसकी जो खासियत था वो कोई और बता गया था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने आप को हम लोग दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास ये है। तो इसलिए ही एक सेइंग है दैट ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज सीम्स टू बी मोर ग्रीनर, क्योंकि दूसरों की जो खुशियां होती हैं, जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, हम लोग उनको क्या बड़ा चढ़ा कर देखते हैं, और हमारी जो बड़ी खुशियां होती हैं उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। सो इसलिए ही हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मैं ये बोलने के लिए बहुत छोटा हूं, पर हमें कभी भी क्या करना चाहिए, बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरीवन इज यूनिक। बट हाँ बच्चों, हमें हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। सो इसलिए ही मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अब्दुल कलाम जी ने बहुत सुंदर बात कही है, दैट टिल योर सिग्नेचर बिकम्स योर ऑटोग्राफ। जब तक आपका जो साइन है आपका ऑटोग्राफ नहीं बन जाए तब तक हार्ड वर्क करना मत छोड़िए। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय टॉक। Beta, Avi, you are not audible. And children, the link is about to get over. We need to join the link again. Avi, beta, you are not audible. आखिर में आई होप करेंगे ये जो मैंने लेसन बताया और इस स्टोरी को हमेशा याद रखेंगे, करेंगे ना आप लोग? Yes, definitely. Yes. ओके, तो अगर आप में से किसी भी कोई क्वेश्चन है और मेरी लाइफ से, मुझसे या इन सेशन से रिलेटेड जो मैंने बताया आप सभी को इन बातों से रिलेटेड, तो अभी आप पूछ सकते हैं। इफ यू वांट, 1 minute. Children, you can raise your hand if you want to ask something. Yes, Nirvi, you want to ask something, beta? You're raising your hand? Ma'am, I'm telling you are so motivational. Wow, you found this very motivational. Really, Thank you it was so much. really Thank motivational. you so much. Anyone Yes, else? Yuvraj. Yuvraj is raising hand. Yes, Yuvraj, please ask. You want to ask something? Any more questions, children? You want to ask something from Avi? Daria wants to speak. Yes, beta, speak. Yes, there. Ask Daria. पूछो, क्या पूछना था? Ask to भैया. Come on, Daryl. बोलो ना. कैसे साफ करना है? So Avi, I would like to thank you for coming up on this session. Yes, And I'm really happy to see you. Although online we are seeing each other after a long time. Yes, ma'am, and thank you so much. You gave me this platform and always keep guiding me. And thank you, everyone. You gave me your No, precious it was time. our pleasure that you came and inspired our little kiddos. You are definitely so a like shining star, and definitely you have inspired our little kiddos to work hard.
and give them messages which need to apply in their life. Really, thanks for coming. Thank you Anybody so else much. who would like to interact with me? It was a wonderful session from Avi Sharma. Beta, thank you so much for your valuable time coming to us, meet us, and share your values. It was really motivational, not only for children, but for teachers also. Right, Shalini ma'am, right? It was Yes, my pleasure. correct. It was lovely watching you, seeing your confidence. Amazing, Avi. Good job. And It's kudos my to pleasure, ma'am. Avi's family also, because it is all teamwork. You get support from your family, your mama and all. They were all very cooperative. I was calling them and they were very cooperative with us. So thank you so much for your valuable time, your coordination. Okay. Thank you so much, ma'am. We hope to see you soon, Avi, when the school will Yes, open. even I hope to meet all of you very soon. Super soon. Thank you. Surely we will be calling you to us. Thank you guys for coming. Thank you for coming. Thank you, everyone. Thank you. A big thank you to Avi from all of us. Yes. Bye bye. Okay, so He has Okay, left as bye-bye, of now. everyone. Yeah. Thank you. bye, Avi, bye. Okay, children. So Bye. this is the end of the session, children. You enjoyed the session, but still the session is left. It is not the end. And as this morning belongs to you, so you can definitely expect lots and lots of entertainment. And to make you laugh, to make you smile, to make you wonder, I'm very happy to introduce Mrs. Poonam Sahani. She's parent of Priyana Sahani from KG2 Carnation. Mrs. Sahani is the